as already you know, if you are watching my video regularly, right? So in my previous video I had discussed the basic format of the cash budget, and now in this video I am going to take the illustration, as I already said, right? A basic and a very easy illustration so that you can understand in the better way how it is prepared, right? What will be the accounting treatment and how it is prepared, and how all the expenses and receipts and payments are shown in this format, right? जो मैंने आपको कल या प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, राइट? तो आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा। द इन्फॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू, द कैश बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड मंथली, right? So information will also be provided to you in the question, that will also be monthly information. So, and here the first thing you have to ensure in the question that for how many months you have to prepare the cash budget for and what are those months. तो अब आपको देखिए ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें लिखा है कि प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एंड द मंथली इन्फॉर्मेशन गिवन फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, एंड यू आर आस्क्ड to prepare the cash budget for the month of October, November, December. So here we have decided in this question that we have to prepare the cash budget for the 3 months October, November, December. So it means we have to prepare 3 columns of amount. 3 columns of amount हमें बनाने हैं। तो मैं ऑलरेडी आपके यहाँ बना दिए। जो मंथ्स के लिए आपको बनाना है आप उस मंथ्स का नाम लिख देंगे। हमें बनाना है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो पहली चीज़, बाकी क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे जो भी है, बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू एंश्योर कि कितने मंथ्स के लिए बनाना। हो सकता है बहुत बार कैश बजट आपको सिर्फ सिंगल मंथ्स का कैलकुलेट करा जाए, राइट? हो सकता है 2 मंथ्स का, बट इन दिस क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स। इट इज डिसाइडेड नाउ, नो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। देन some expenses are given horizontally and some revenue are given horizontally, right? monthly wise. Sales and the purchase, ये ध्यान रखिएगा, सेल्स एंड परचेज ही मेन आइटम है आपका उसमें, जो कि हर क्वेश्चन में दिया होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया होगा कैश बजट का जहां आपको सेल्स और परचेज नहीं दिया हो, बिकॉज सेल्स और परचेज ही मेन एक्सपेंस और मेन रेवेन्यू आइटम होते हैं। ऑलराइट, तो and some additional information are given in the question. You are also watching that कि कुछ additional information दी हुई है। These are known as the adjustments, right? We have to consider these while preparing the cash budget, and we have to adjust. It will depend in the question that how it will be adjusted. I will adjust it, right? And I will show you what will be the treatment, what are these adjustments related to, ये सब हम देखेंगे। बस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि क्वेश्चन का हमेशा आपके सामने स्ट्रक्चर ऐसे ही आना है, जो भी होगा जितने भी हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ मैंने अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन लिया है, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स मैंने नहीं लिए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिफिकल्ट नहीं लिए हैं, राइट? The first adjustment, if you are watching first, that is not actually adjustment, that is the information given. The closing balance of cash या opening balance of cash will always be given in the question too, right? ये भी हमेशा हर क्वेश्चन में दिया होगा, whether that is question of adjustment or not, additional information or not, but this information is certain to be given in the question, right? Either opening balance of the cash of any particular month or the closing balance of the cash of any month, so that you could start it, ताकि हम इसको start कर सकें उसके लिए, right? तो एवरीथिंग इज क्लियर। क्वेश्चन का बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत क्लियर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नाउ वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फॉर्मेट। द फर्स्ट थिंग टू बी ब्रॉट इन द फॉर्मेट ऑफ द कैश बजट इज दैट यू स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। एंड द क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी क्लियर है, राइट? आपको 1 अक्टूबर को बैलेंस दे रखा है 8000, राइट? 8000 आपको यहां गिवन है ऑलरेडी, एंड उसके बाद आपको फिर फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है। बट यहां आप थोड़ा सा पॉइंट नंबर 3 पर देखिए, विच इज रिलेटेड, बिकॉज हमें आगे हमारा फर्स्ट ए हेड हमारा स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज रिसीप्ट्स। और रिसीप्ट्स में आपको मैंने बताया था 2 आपके आइटम मेन है, एक तो कैश सेल्स और एक होता है रिकवरी। रिकवरी फ्रॉम डेटर्स इफ देयर इज अ क्रेडिट सेल्स इन द क्वेश्चन। बस ये ही मेन आइटम होता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट आइटम विच इज गोना बोदर यू, right, little bit, because some working notes and some calculations will be involved largely in this,
बिकॉज सम विल बी सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन मे बी गिवन लाइक कि कुछ परसेंट कैश सेल्स है, कुछ परसेंट क्रेडिट सेल्स है, एज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 एज यू आर ऑलरेडी वॉचिंग। तो क्या लिखा है वहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पर, आप वहाँ देखिए क्वेश्चन में। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ जब भी मैं अपनी कोई वीडियो स्टार्ट करता हूँ, इफ़ यू आर स्टडिंग द अकाउंटिंग, इफ़ यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, इफ़ यू आर स्टडिंग एनी न्यूमेरिकल पेपर, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी रजिस्टर एंड द पेन विद यू एंड जस्ट वॉचिंग वीडियो लाइक दिस, राइट, दैट जस्ट अ आई वॉश, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं तो एक तरह से आई वॉश कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है मैं देख रहा हूँ, बट यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, आपके पास फिर कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप पेन के साथ क्वेश्चन को भी उतार रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मेरे साथ उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए फिर आप 100% गेन कर रहे हैं एंड यू विल गेट द मास्टरी एंड द कमांड ओवर इट। आई जस्ट गारंटी फॉर दैट, तब मैं गारंटी लेता हूँ आपको कि 100% आपको समझ में आएगा। सो आप मेरे साथ करिएगा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 को देखिए, वहाँ से हमें हिंट मिलता है कि देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर वर्किंग नोट विच इज टू बी प्रिपेयर्ड इन दिस क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज इट इज हिंटेड इन द क्वेश्चन दैट द 10% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ पर्टिकुलर मंथ इज इन कैश। यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो आपको रेस्पेक्टिव मंथ्स दे रखे हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, राइट। मैं यहाँ कन्वीनियंटली लाइन भी खींच लेता हूँ, जस्ट अ वर्किंग नोट इट इज, वर्किंग नोट, राइट। सो तो वर्किंग नोट में तो कोई ऐसा है ही नहीं, आप कैसे भी बनाए जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, मैंने तो ऐसे ही पता है। मैं पहले आपको बता देता हूँ सेल्स अगस्त की दे रखी है क्वेश्चन में आपकी 60,000, ये हम यहाँ लिख देते हैं सेल्स 60,000, देन 62,000, 55,000, देन 55,000 एंड देन दिसंबर की है आपकी 66,000। These are the respective sales of different month is given and I have written here. Why I have written here in the working note? Because it is given in the question that the 10% of the sales is in cash. कैश का मतलब ये है कि जितना हम लोग बेच रहे हैं, टोटल सेल्स जितना कर रहे हैं, उसका 10% कैश में है। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 3 हमारा सिग्निफाई करता है कि कुछ परसेंट हमारा कैश सेल्स है, राइट, और कुछ परसेंट हमारा क्रेडिट सेल्स है, एज इट इज अंडरस्टूड दैन व्हेन इट इज सेड इन द क्वेश्चन दैट 10% इज इन कैश। तो वेन एवर देयर सम हिंट विल बी गिवन देन वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट, देन उसके लिए हमने वर्किंग नोट बना लिया है। और मैंने क्या किया है, यहाँ से आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख लिया है, राइट। पहले ही टोटल जो सेल्स गिवन है ये हमारी है सेल्स, ये हमारा वर्किंग नोट सेल्स। अब आपको बोला है कि 10% सेल्स कैश में है, कैश सेल्स वो 10%, ठीक है, 10% ऑफ दिस, यानी इसका मतलब यहाँ पर आपका 6,000, यहाँ आपका 6,200, यहाँ आपका 55,000 का 10% 5,500, यहाँ 5,800 और यहाँ आपका 6,600। When it is said in the question that it is in cash sales, तो डेफिनेटली हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, द रिमाइंडर जो हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो मैं माइनस कर रहा हूँ आपके सामने, ये 54,000 माइनस करने के बाद 55,800, राइट, 49,500, 52,200 and 59,400. So what our mind says, common sense says that the remainder would be credit sales. आप खुद बताइए ना, ये हमारी क्रेडिट सेल्स होगी। जब आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया कि 10% कैश सेल्स है, यानी पर्टिकुलर एवरी मंथ, राइट, यू आर हैविंग द कैश सेल्स मीन्स यू आर गेटिंग द कैश इन द सेम मंथ, यू आर एक्सटेंडिंग द सेल इन तो it means the remaining amount in the balance amount which is said in the question, that is credit sales, and about balance amount it is said in the question the balance is to be recovered in the next month, right। इसका मतलब सीधी सी बात ये है, यहाँ आपको ये मान के चलना है, इन द नेक्स्ट मंथ का मतलब ये है कि एक मंथ का हम क्रेडिट देकर चल रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, और हम बना रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीन मंथ्स का बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश सेल। तो कैश सेल्स तो आप बिल्कुल रेस्पेक्टिव मंथ्स की लिखेंगे, क्योंकि जो आपको उसी मंथ में कैश हो रहा है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर में मेरी सेल्स कितनी हुई
55,000. तो अक्टूबर में इंस्टेंटली आई विल गेट द कैश बिकॉज इट इज़ इन द कैश सेल्स 5500. तो मैं यहाँ अक्टूबर में तो यहाँ लिख ही देता हूँ कैश सेल्स में 5500, क्योंकि अक्टूबर का हमारा 5500 है. देखिए उसके बाद नवंबर की एज इट इज़ कैश सेल्स 5800, जो मैंने यहाँ लिख दी. एंड देन इट इज़ ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर 6600. No, there must not be any confusion, any doubt, because it is clearly mentioned in the question. What is said in the question? That is about the balance, and the balance it is 54,000, 55,800, 49,000. It is the credit sales, and it is to be recovered in the next month. इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर मेरे पास जो रिकवरी आएगी, it is a common sense, apply your mind here. The recovery which I will get in the month of the October, that will be related to the September. यानी सितंबर का ये पूरी उधार सेल जिसे क्रेडिट सेल्स हम बोल रहे हैं, you will get it here in the month of October. And October 1 credit sales you will get in November here, and the November 1 you will get it here. तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में ये ध्यान रखिएगा. मीन इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर यू विल गेट द रिकवरी ऑफ द क्रेडिट सेल्स ऑफ सितंबर. यानी अक्टूबर में मेरे पास जो पैसा आएगा वो सितंबर की क्रेडिट सेल्स का रिकवरी का आएगा, बिकॉज इट इज सेड इन द क्वेश्चन बैलेंस इज टू बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट मंथ, राइट. तो ये 55,800 जो मुझे मिलेंगे वो अक्टूबर में मिलेंगे, तो इसको मैं अक्टूबर में लिखूंगा यहाँ पर. अक्टूबर में किसका लिख रहा हूँ मैं? सितंबर का 55,800. लाइकवाइज अक्टूबर का लिखा जाएगा नवंबर में 49,500, एंड इन द सेम वे नवंबर का लिखा जाएगा दिसंबर में 52,200. राइट, देयर मे बी सम राइट minor right miscalculations, right, as I am relying on my as you are watching, I am directly calculating here. It is the habit. I could have solved all the question and I could show you and explain it here. मैं ऐसा नहीं करना चाहता. मैं ऐसा भी कर सकता था तो आपके सारा पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ दिखा देता और उसके बाद मैं वीडियो ऑन करता फिर आपको एक्सप्लेन कर देता. बिकॉज there are two things, because I am in the habit of the calculating myself, right. The second thing is that I want to solve it before the students, before the viewers, so that they could also apply their mind, वो मेरे साथ चल सकें. इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी आप लोगों के सामने करता रहूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग भी अपना माइंड अप्लाई करते रहो कि यहाँ पर इतना आएगा, यहाँ पर इतना आएगा. तो माइंड, राइट, डू नॉट माइंड इफ देयर इज सम माइनर कैलकुलेशंस डिफरेंसेस, राइट. तो वो अलग बात है, मैं आपके सामने ही क्योंकि सॉल्व कर रहा हूँ, बट हियर जस्ट टू यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर. तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ये वर्किंग नोट हमारा क्लियर हो गया. मेन थिंग, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन अगेन, एंड आई लेट यू वॉच दिस क्वेश्चन एंड वी मूव ऑन. अब आपके सामने फिर देखिए क्वेश्चन है और अब फिर देखते हैं दोबारा से इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ. इसके बाद कैश सेल्स रिकवरी. नाउ वी हैव टू राइट बी कॉन्शियस इन द क्वेश्चन कि वेदर इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द एनी अदर रिसिप्ट्स. क्या कोई इसके अलावा हम पे कोई और इनकम आ रही है, कहीं से डिविडेंड आ रहा है, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से कमीशन आ रहा है. देयर इज नो सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो दिस हेड इज कंप्लीट. ये इसका मतलब हमारा हेड यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है रिसिप्ट वाला, जिसको हम यहाँ टोटल करेंगे बाद में, अभी नहीं. ये हमारा टोटल हो जाएगा. Now we have to prepare the second head B, that is the cash payments, right? Payments. Here now we will consider the payments. What are the different cash outflows? As I have told you, the principal cash outflow is always a purchase. तो यहाँ आप सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया था कैश परचेज. कैश परचेज में हम देखते हैं क्या है. Is there any information regarding the cash purchase is given? No. Here the point number 4, if you are watching, that is the creditors have allowed. Here इसको भी आप ध्यान रखिएगा. Creditors have allowed 2 months credit. 2 months credit का मतलब ये होता है जो creditors कौन लोग होते हैं जिनसे मैंने उधार परचेज किया है. तो first thing it signifies in the question that the entire purchase is credit. पहली बात तो ये चीज़ ये शो करती है कि जो जितनी भी टोटल परचेज है वो हमारी क्रेडिट है. जब सारी परचेज क्रेडिट है तो ये हमारा नील हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं आना है. What about the पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, यानी जो सेकंड है हमारा पेमेंट मेड टू हुम, टू द क्रेडिटर्स.
क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करा जाएगा ये है। तो वहाँ हिंट दिया हुआ है आपको, दे हैव अलाउड यू 2 मंथ्स क्रेडिट। दे हैव अलाउड यू द 2 मंथ्स क्रेडिट का मतलब ये कि जिनसे मैंने परचेज किया है उन्होंने मुझे 2 महीने का क्रेडिट दे दिया है। यानी आई हैव टू पे आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 मंथ्स, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 मंथ्स, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 मंथ्स। हियर अगेन यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड योर कॉमन सेंस। हियर मीन्स इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर जो मेरी परचेज है वो तो मेरी उधार है, तो मैं अक्टूबर में तो नहीं पेमेंट करूंगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अक्टूबर में जो मैं पेमेंट करूंगा किस परचेज का करूंगा, पिछले 2 महीने वाली का। यानी अक्टूबर में जो पेमेंट करा जाएगा तो मैं करूंगा अगस्त में जो मैंने परचेज की है। तो अगस्त में जो मैंने परचेज की है वो 36,000 जो परचेज की है वो क्रेडिट सेल्स का पेमेंट कब होगा, वो अक्टूबर में होगा। यानी क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है 2 महीने का आपको क्रेडिट दे रहे हैं। तो आप जो यहाँ लिखोगे पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, तो यहाँ आप लिखोगे अक्टूबर में जो लिखोगे वो अगस्त का अमाउंट लिखोगे, अगस्त की परचेज का, दैट इज 36,000, वो यहाँ लिखा। नवंबर में जो पेमेंट होगा वो होगा आपका सितंबर का। अभी आप साइकिल समझ जाएंगे क्योंकि 2 महीने की साइकिल बनती चली जाएगी। यानी अगस्त जो नवंबर में जो मैंने परचेज़ की मुझे उस टाइम तो पेमेंट नहीं कर रहा है, बट पेमेंट तो कर रही है पिछले मंथ्स का। तो पिछले 2 महीने पहले वाला हो गया मेरे लिए सितंबर का, तो वो आपका गिवन है 38,000 जो मैं यहाँ पेमेंट करूँगा। अगर दिसंबर में मैं पेमेंट करूँगा अक्टूबर का, पिछले 2 महीने पहले का, और अक्टूबर में मैंने परचेज़ की थी 35,000 जो पेमेंट मैं यहाँ करूँगा। ये थोड़ा सा यही है, इसमें और कुछ नहीं है। परचेज से रिलेटेड आपका वर्किंग नोट्स और आपका सेल से रिलेटेड वर्किंग नोट्स कह लीजिए या कैलकुलेशंस कह लीजिए या एडजस्टमेंट्स कह लीजिए, यही थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड। अदरवाइज कोई कैश बजट में डिफिकल्टी नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई लाइक इट मोस्ट एंड ट्राई टू टीच, राइट, एंड आई होप दैट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेड, एज आई हैव टोल्ड यू, वेजेस, ये लेबर। तो वेजेस और लेबर से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स जो मंथ्स में हमारी वेजेस हो रही तो उसी मंथ में हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, ये क्लियर सी बात है। तो मैं वेजेस अक्टूबर का अक्टूबर में पेमेंट करूंगा। अक्टूबर में हमारी वेजेस है 10,000, तो मैं अक्टूबर का अक्टूबर में पेमेंट करूंगा। नवंबर का नवंबर में पेमेंट होगा, दैट इज 8,500, और दिसंबर का दिसंबर में पेमेंट होगा, दैट इज 9,500 वेजेस। ऑल राइट, नाउ ओवरहेड्स आर दी अदर एक्सपेंसेस, यू कैन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी आपका सेम ट्रीटमेंट होगा क्योंकि उनके बारे में भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ओवरहेड्स भी सिंपल का मतलब ये है, अक्टूबर का अक्टूबर में पेमेंट करेंगे। अक्टूबर का हमारा 2,500 है। उसके बाद आपका फिर है 2,000 एंड देन 1,000। तो आपका खत्म ओवरहेड्स तक, राइट। अब आप ये देखिए पूरे क्वेश्चन में अब कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसी बचती है विच हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड हियर बिकॉज हमने सारे एक्सपेंसेस तो शो कर दिए। नाउ एनी अदर पेमेंट, एनी अदर परचेज ऑफ द एसेट। तो अब आप देखिए इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द पर्टिकुलर मंथ यू आर परचेजिंग द एसेट, तो जाहिर सी बात है आपका कैश आउटफ्लो होगा। तो ये आपका दिया हुआ है, देखिए प्लांट परचेज्ड इन द मंथ ऑफ द दिसंबर दैट इज 16,000, राइट। आपका 16,000 दिसंबर में प्लांट खरीदा जा रहा है, तो यहाँ आप लिखोगे प्लांट परचेज्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर दैट इज 16,000। अब कुछ नहीं करना है, इसका टोटल हम यहाँ कर लेंगे। ऑलराइट, ये हमारा टोटल यहाँ आ जाएगा। ये आप पहले कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें तो हमारा फर्स्ट आपको मैंने इसका स्ट्रेटेजी बता दिया था कि आप यहाँ जो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है ए माइनस बी, मीन्स ए हेड माइनस बी हेड विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट, ऑफ कैश। वो आपका यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो पहले मंथ्स का पहले करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपकी साइकिल कैसे चलेगी वो आपको बताता हूँ। तो पहले मंथ्स का हम क्या करेंगे, पहले अक्टूबर का टोटल करते हैं, रिसीप्ट्स का, ये आपके सामने में कर रहा हूँ, 69,300। मैं पेमेंट्स का टोटल कर रहा हूँ, पेमेंट्स का आप अलग से टोटल कर सकते हैं, 48,500, राइट। तो दिस होल अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर, ये आपका हो जाएगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ, $20,800
जो ए माइनस बी करके जो माइनस करके आया, ये मैंने इसमें से माइनस किया तो ये अमाउंट आ गया। तो इट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑफ अक्टूबर विल बी ट्रीटेड, यहाँ आपको समझना है, कंसिडर्ड एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी ऑफ नवंबर। तो ये 20,800 यहाँ का आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जो आप यहाँ दिखाओगे। इसको मैं यहाँ ले आऊँगा 20,800 को, ये इस मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो गया। जाहिर सी बात है नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब मैं इसका टोटल करूंगा उसी तरह से लाइकवाइज एज आई हैव डन। $76,100 ये हमारा रिसीप्ट का टोटल रहा है। इसी तरह से मैं आपका पेमेंट का टोटल कर रहा हूं। $48,500 ये पूरा अमाउंट इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैं कर दे रहा हूं आपके सामने। $27,600 इज द रिमेनिंग अमाउंट, राइट। आप एक बार फिर टैली कर लीजिएगा। नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यही आ रहा है 27,600, राइट। ऑलराइट, अब फिर वही आपको स्ट्रेटेजी लेकर चलना है कि ये किसका क्लोजिंग बैलेंस आया आपका, नवंबर का। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिसंबर, जो कि मैं यहां लिख देता हूं 27,600। अब आपको इसी तरह से इसका टोटल कर लेना है। $86,400 इसका टोटल कर लेते हैं पेमेंट का। $61,500 इसी तरह से इसको माइनस कर लेंगे। $24,900, राइट। तो दिस विल इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश of December. So it has been budgeted, it has been projected now, right? It is estimated now in the month of October we will have the cash of rupees 20,800. In the month of November we are going to maintain the cash of rupees 27,600. In the month of the December we are going to maintain the cash of 24,900. It is just a budgeted, estimated, right? जो कि हमारे को बताती है, यही कैश बजट का ऑब्जेक्टिव भी होता है बनाने का, right? As I have already told you, I have done all the calculations before you. I have, right, no prior preparation, right? कि मैं आपसे पहले से कैलकुलेट करके लेकर आ रहा हूँ, आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया है। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है कि फॉर्मेट कैसे बनता है, राइट। एक बार आप दोबारा करिएगा क्वेश्चन को तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, और आपने बिल्कुल मेरे साथ साथ किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल 100% इसको समझ गए होंगे। तो इट वॉज द ईजिएस्ट प्रॉब्लम, वेरी बेसिक प्रॉब्लम, आई केम विद इट, राइट, with you. Now expect the next video a little bit difficult. I will take the little bit level 2 problem, right, in the next video, so that you could make understand and you could have the mastery over the cash budget, और आपको थोड़ा सा confidence feel हो कि अब हमारी कुछ समझ में आया है। I hope that it is very much clear to and I made some sense and you all of you understood well. Thanks for watching this video patiently. Thank you. See you in the next video. Bye.